سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل کیس کو ختم کریں. کوئی بھی فرد جو انفورسلی ڈس اپیئر ہے آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کیس کا شکار نہیں ہونے دیں. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بالاج کے جو خاندان ہیں اس کے جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے. FIR کی بیسس پہ ہم اس تحریک کو جو ہے نا ختم نہیں کریں گے. تیسرا ہمارا یہی مطالبات ہے, یہ آپ کے سامنے جو ہے نا ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ان کے والد سمیت جو پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تمام جتنے بھی مسنگ پرسنس فیملیز ہیں ان کے تمام جو لوگ ہیں ان کو رہا کریں. یہ تین ہمارے بیسک مطالبات سے اس سے ہم جی. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم پہلے بھی آئے تھے, آج بھی پھر دوبارہ آئے ہیں آپ کے پاس. ان چیزوں کو ذرا باری باری اگر لے لیں تو پھر جہاں تک تو بات ہے بالاج والے لوگوں کی, آپ کو پتہ ہے ان کو سسپینڈ بھی کر دیا ہوا ہے, ان کے اوپر FIR بھی درج ہو گئی. کسی کا ارادہ نہیں ہے ان میں سے کسی کو بھی پروٹیکٹ کرنے کا. میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کسی کا ارادہ نہیں ہے پروٹیکٹ کرنے کا, پروٹیکٹ کوئی کیا بھی نہیں جائے گا, ٹھیک. لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو پروسیس کے بغیر کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے, اس طرح ان کو بھی پروسیس کے بغیر سزا تو نہیں دی کیا پروسیس ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے آئین کے تحت جب سیشن کورٹ میں بالاج کو پیش کیا گیا 10 روزہ ریمانڈ میں رکھا گیا, اس کی دوران کسٹڈی اس کو قتل کیا گیا, اس کے علاوہ اور کیا پروسیس ہے؟ وہ اس وقت کسٹڈی میں تھا, اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ آپ نے جن کے اوپر بھی ذمہ داری لگائی, جن لوگوں کا بھی نام لیا, ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی تو اس کے بعد سزا. تو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی کارروائی کی پروسیس ہے. لیکن ایک سائڈ پہ کیوں کارروائی ہوتی ہے؟ جب ہمارے لوگ مسنگ ہوتے ہیں تو ان اداروں پر کیوں کارروائی نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ اپنے اداروں کی طرف سے کہتے ہیں پہلے تفتیش ہوگی پھر کارروائی ہوگی, لیکن ہمارے لوگ جب اٹھائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست مخالف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. تو یہ جو تفتیش کا ہے یہ بھی تو دونوں سائڈ ہونا چاہیے. 14 سال سے آپ نے تفتیش نہیں کی ہے, لوگوں کو حراست میں رکھا گیا. یہاں پہ بحث مباحثہ کرنے کے لیے نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل, جی میں نے کہا کہیں ہم میں سے کوئی بھی اس عمر میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں تو آپ کھڑے ہو کر اچھا نہیں لگے, اچھا نہیں لگے, دھرنے میں ہی بیٹھیں گے تو پھر آپ اندر آگے آ جائیں, فیملیز کے سامنے آ کر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور میں یہ میڈیا سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں, پیچھے ہٹ جائیں. संगत में संगत जो सिक्योरिटी या कमो चेन जोड़ करने कमो चेन जोड़ करने तो का मेल है गुशा गाया गुशी में आ जाए थोड़ा सा पीछे से خاموش ہو جائے پلیز, خاموش ہو جائے پلیز, پلیز پلیز خاموش ہو جائے. چھوڑ دے میڈیا کو, چھوڑ دے پلیز, پلیز میڈیا کو چھوڑ دے بس. جی بس. اور باقی آپ سب لوگ تھوڑا نظم و ضبط کا خیال رکھیں, جو میڈیا سے نہیں ہے وہ پیچھے ہو جائیں, تھوڑا سا آپ لوگ پلیز پیچھے ہو جائیں, پلیز اگر مائنڈ نہیں کریں پیچھے آ جائیں, آواز بھی آ جائے گی آرام سے, اور ہمیں اپنا تھوڑا سا کام جو 2 چیزیں تین چیزیں پیش کرتے ہیں, سزا نہیں چاہیے. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے, ہم نے بات بھی کی ہے, آپ جو ہے نا CTD کو غیر مسلح کریں. CTD بہت سی چیز اس پہ ملوث ہے. آپ جو ہے نا سب سے پہلے بالاج کے کیس پہ نہیں آئیں, ٹھیک ہے نا. یہ تحریک جو ہے نا یہاں پہ لاپتہ افراد کے لواحقین موجود ہے. کل کو ان کو بھی خدشہ ہے کہ ان کے لواحقین کو بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں مارا جائے گا. دیکھیں جی آپ کی بات آپ نے پورے پاکستان کو پہنچا دی ہے, بتا دی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہی کمیٹی آپ کے پاس وہاں بھی آ کے بات کرے گی. جہاں تک یہ دوسری چیزیں ہیں CTD وغیرہ کی ہیں, ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو حکومت آپ سے بات کرنے کے لیے, کوئی چیز ایسی نہیں, کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو فوری طور پہ ریزالو ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں بچے جس کے لیے ہم چل کے آپ کے پاس آ سکتے ہیں, جس طرح آپ کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں, آپ اپنا سب سے پہلے جو ہے نا تعارف کرائیں. اور میں آپ سب سے بولتی ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم یہ
तहरीक शायद इस्लामाबाद में पहली मरतबा आई है और पहली मरतबा आप जो है ना हमसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं और ये पीछे लोग हैं ना, इन्होंने ऐसे बहुत से प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक है ना। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मैं मौदबाना मेरी गुजारिश है, प्लीज़ ये कमेटी बनाई गई, हमने इस पर कोई वो नहीं किया, ठीक है ना। और आई जी साहब से भी मैंने कहा था उस दिन, ठीक है, हम बात कराने ही आए, ठीक है ना, लेकिन हम एक बात पे वो करेंगे, अगर इख्तियार रखते हैं तो आए हमारे साथ बात करें, ठीक है ना। अगर आप इख्तियार नहीं आप रखते बताइए, आपको इख्तियार के इज़हार के लिए क्या चाहिए? आप इख्तियार फौरी तौर पर आप इन लापता अफराद की फहरिस्त हम आपको देंगे, इनको रिहा करें फौरी तौर पर, जो यहाँ पे मौजूद है, जी, जिनकी फैमिलीज मौजूद है, जिनकी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद है। सर बाइख्तियार आप बात कर रहे हैं, ये वो चीज़ है ना, देखिए आपने कहा, आपने सबसे पहले ये बात कही, ठीक है ना। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आहिस्ता तरीके से सही तरीके से ये बात करते हैं, ठीक है। आपने ये कहा कि हम CTD के जो मुलजिम है, जो मुलव्विस है, इसमें प्रोसेस के जरिए हम उसको ये कर रहे हैं। हम आपसे ये मांग रहे हैं कि भाई जितने लापता अफराद है तो यहाँ मौजूद है इस वक्त, उनके लोगों को भी अपने कानूनी अदालतों में प्रोसेस के लिए लेकर आए। बिल्कुल हम आपको ये नहीं बोल रहे कि उनको जो है ना इनके हवाले रखते, ठीक है ना, हम आपकी प्रोसेस को ही मांग रहे हैं। आपकी 100% बात मानते हैं कि जिस पे भी कोई इल्ज़ाम हो उसको प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए, ठीक है, कानून के प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए। अब लेकिन आप अगर ये कहेंगी कि आज से 10 या 12 या 13 साल पहले का जो इशू है उसको तो फिर वहाँ पे आके बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। नहीं, आपने इतने सालों से देखा नहीं है, तो नहीं आया है ना। मैं- पिछले साल भी तो हम क्वेटा में आए थे, उस दौरे हुकूमत के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और वजीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ आए, उन्होंने रिटर्न में दिया, ये पेपर मेरे साथ है, उन्होंने रिटर्न में दिया कि जितने भी फैमिलीज हैं उनको उनके प्यारों के बारे में उनका जो भी स्टेटस है वो बताया जाएगा और रिहा किया और जाएगा, जाली मुकाबलों को रोक दिया जाएगा। सब ये रिटर्न में अगर दी जाए, ये वही लोग हैं जो इख्तियार रखते हैं। सर वो रिपोर्ट उन्होंने पेश है जिसपे चल रहे नहीं, आप प्लीज वली खान अगर इस लंबे प्रोसेस में नहीं जाए, अगर वो कमेटी बहाल होती तो बारात बलोच का कत्ल नहीं होता, ठीक है ना। अगर वो कमेटी बहाल होती और राना सनाउल्लाह अपने बात पर टिका रहता, ठीक है ना, हमने उन पर भरोसा किया था, 50 दिन का धरना खत्म किया, उसने रिटर्न शेप में दिया कि ही विल स्टॉप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ठीक है। लेकिन 2022 से लेकर 2023 तक आपको मैं फेरिस्त फराहम कर सकती हूँ कि लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में मारा, ठीक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सियासी वर्करान हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, काइंडली ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ठीक है ना। इसको जो है ना एक कमेटी के जरिए हम, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर मारन यहाँ पे आकर ऐलान करे कि ये मसला हल हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ठीक है ना। वजह ये है, मैं आपको बोलूँ, वजह ये है कि आज पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ है, हमारे एक काल पे पूरा बलूचिस्तान बंद हो सकता है, ठीक है ना। और हम अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे, हम अपने लोगों को वो चीज़ देंगे जो हकीकत है। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल केस को ख़त्म करे। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो डॉक्टर इंजान को छुड़ा सके, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता कि आपके जो मुश्किलात हैं, जो मसाले हैं, उनको हल कर सकते हैं, लेकिन आप आए तो इस्लामाबाद में। जी हाँ, हम आए और हम आपसे फिर से यही बात कर रहे हैं जो गवर्नर साहब ने बात की, इसकी कंटिन्यूटी में आप बेअख्तियार इस्लामाबाद के पास हम आए हैं इस उम्मीद के साथ कि इस्लामाबाद इख्तियार रखेगा, ठीक है। उम्मीद की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस प्रोसेस की बात कर रही हूँ, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। हम किसी कमेटी, किसी लीड पर सूरत हाल के ऊपर जो है ना नहीं जाएंगे। हमने धोखे बहुत खाए हैं, ये तहरीक जो है ना यहाँ पहुँची है शायद आज मीडिया आई है, क्योंकि वो मसला ये था कि आप लोगों की खुद के माशाल्लाह से जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमारा बहुत शानदार इस्तकबाल किया, उस शानदार इस्तकबाल की वजह से जो है ना फिर हमारे ऊपर झूठी बातें गढ़ी गई कि एक बंदी जो है ना गिरफ्तार है, ठीक है ना। ये कहा गया कि हम लोगों को जो है ना, लोग तो खुद अपनी मर्जी से जा रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ये मानते हैं कि आपकी इंतजामिया ने औरतों पर तशद्दुद किया? आप पहले सबसे पहले उसकी माफी मांगिए, सबसे पहले माफी मांगिए। सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स आपकी कमेटी ने जारी किए हैं हमारे ऊपर कि हम लोग गिरफ्तार नहीं थे, हम लोग खुद जा रहे थे, बस किसी ने ये नहीं कहा कि गिरफ्तार नहीं।
ये जितनी बच्चियां हैं ये रोशनी नहीं आपने अगर खुद होती- कहा, एक आपने मिनट, अदालत नहीं, में नहीं, खुद कहा मैंने नहीं कहा कि एक बंदा जो है मैं ना अदालत में गिरफ्तार गया है, ही नहीं, मैं अदालत में नहीं गया। आपको गलत आप किसके गलत- साथ आए हैं? मेरी बात आप गवर्नर है, आप हमारे साथ आए, आप जहाँ तो नहीं, बोल हम रहे भी थे आप आपके हमारे साथ साथ आए, तो आप हमारी तरफ से बात करें ना। तरफ से तो आप इधर से बात करते हैं। हम भी आपके साथ ही आए हैं। देखें आपके ये जितनी बच्चियां हैं ये जिस दिन हवालात में थी हम भी तीनों लोग गए थे और हमने फौरी तौर पे हवालात खोल के इनको कहा। मसला ये एक नहीं मिनट आपने मेरी बात हवालात सुनो। खोल के, मसला मेरी ये है बात- कि हवालात किसी में ने- डाला क्यों किसी गया? ने गलत मैं यही बोल रही हूँ, आप ऑन कैमरा एक्सेप्ट कहा करें ना, कि गलत डाला, मैंने कहा औरतों कि पर किसी तशद्दुद किस्म किया का- गया, नहीं, मर्दों को मेरी मारा बात गया, सुनो, ठीक मेरी है ना? बात सुनो, मेरी बात सुनो। तशद्दुद अभी- बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जो हुआ गलत। मैंने उस दिन भी आपकी इन बच्चियों से कहा था कि अगर किसी ने तशद्दुद हो गया तो हम लोग कमेटी की तरफ से माजरत करते हैं। मैं अभी भी आपके सामने कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो ठीक बात है वो ज़रूर मानी जाएगी। और अभी भी इसीलिए आए हैं कि इस बात को हम हल तलाश करें इसका। इसलिए नहीं आए खाली कि आपको ये कहें कि जी यहाँ से आप उठ के चले जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस बात को बैठ के बात की जाए, लेकिन ये अगर बात तभी हल होगी अगर आप लोग ये समझेंगे कि कौन सी चीज़ अभी हो सकती है और किस चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बेटा बात ये है कि आप खुद ये ऐसी नहीं हैं। ये कई दिहाइयों के मसले हैं, कई आप क्या दिहाइयों के कर सकते मसले हैं? आपने हैं। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ा? जी ये पढ़ा हमने पढ़ा है सबसे और पहला डिमांड हमारा क्या है? आपके बहुत सारे डिमांड पहला डिमांड आपके बहुत सारे डिमांड्स हैं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं सर, हमारे अभी जो मेल साथी उठाए गए हैं हैं कि सीटीडी को डिसआर्म किया जाए। नहीं, हमारा नंबर पहला वन। डिमांड ये है कि यूएन की जो है ना कमेटी मंगाई जाए वर्किंग ग्रुप की, वो बल्चिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की पामालियों की गैर जानिबदाराना जो है ना रिपोर्ट पेश ये करे। मुनासिब नहीं है, क्यों? इसलिए कि दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। अगर ये रियासत के अंदर मसला ना हल हुआ तो फिर आप ये बातें करें। रियासत के अंदर 3 मेरा दहाइयों आपसे से मसला देखें, हल नहीं हुआ है और क्या मैं- करें? आप मैंने- रियासत के पास ही तो आई हैं ना। अगर मैं- रियासत नहीं हल कर सकती बेटा तो आप यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं खड़ी। चलो ठीक है, ये आप तो पहला डिमांड तो हो गया, आप आगे बढ़े। दूसरा डिमांड आपका सीटीडी को डिसआर्म करने का है। हमने आपको उसके पहले कहा कि जी ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमल होना चाहिए। सीटीडी को बगैर किसी तरीके और ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका एक लाए अमल तय कर लेते हैं बैठ के कि कैसे आकर आप ये भी तो देखें कि बेशुमार ऐसे हादसा भी हो रहे हैं जिसमें 20-20, 25-25 लोगों की जानें जा रही हैं वहाँ पे भी। उसमें आखिर उसके लिए भी तो कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए ना। वो भी नहीं होना चाहिए जिस तरह यहाँ पे आप जिस तरह किसी को गुमशुदा नहीं होना चाहिए उस तरह किसी के साथ जिस तरह भी इस तरह के हादसे जो सैकड़ों हो गए हैं वो भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमने कभी भी इस चीज को कहा ही नहीं है, ठीक है कि वो मैं- होने चाहिए, जी, लेकिन उनकी वजह से मासूम लोगों को नहीं तो जा मारना सकती नहीं चाहिए। किसी के बदले में किसी के साथ कोई ज्यादती मैं भी नहीं यही की जा बोल रही हूँ। सकती, कभी नहीं की जा सकती। लेकिन इसी तरह ज्यादतियाँ हो भी रही। तो हमें चाहिए कि मिल बैठ के इस मसले का हल करें और हल करने का तरीका यही है कि जो चीज़ें फौरी तौर पे हो सकती हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। जिसमें कुछ वक्त दरकार है उसका कोई लाए अमल तय कर लिया जाए कि उसको कैसे करना है। आप ये बताएं कि आज रात हम क्या कर सकते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं, परसों हम क्या कर सकते हैं। कहीं से तो इब्तिदा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आप आज रात क्या कर सकते हैं? सबसे आप पहले बताइए कि आपके ज़हन में सर, हम कौन सी आपको चीज़ ये है लिस्ट आज रात हो सकती सर, हम जो आपको यहाँ पे confidence ये building लिस्ट होगी। प्रोवाइड करेंगे जितनी भी मुमकिन है। हमें 10 लोग कम से कम दे दें आज। 1 मिनट समी, वो हम डिस्कशन करते हैं। 1 मिनट। ना एक बच्चे कुछ का ना जो चीज जैसे सर बताइए कौन सी, मुझे ये बताइए वो मैं झुक्का जला भी दे आओ गोश्ता पीरे मर्द मेरे गाँव सब इनका अकेला बेटा है। बंद लग चुकी नाम अल्लाह करम क्या हम सब की लिस्ट ले लेते हैं जो आपने कही। हमें आज के रात ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोग। कौन से 10 जरूर 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 आप जो है ना कौन से नहीं, आप हमें ये बताएं कि हमारे जो मेन डिमांड्स है सीटीडी को आप गैर मुसल्लह करेंगे, डेथ स्क्वाड्स को गैर मुसल्लह करेंगे, ठीक है लेकिन ना? सरकार का कोई डेथ स्क्वाड नहीं है। थोड़ा सपोर्ट तो सरकार कर का रहे कोई हैं। लेकिन इस तरह मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें सिर्फ ये हो कि जी फला चीज को सपोर्ट